تلنگانہ ہائی کورٹ نے IAS افسر امرپالی کو کیٹ کی جانب سے ریاست تلنگانہ کے حوالے کرنے کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ امرپالی جو تلنگانہ ریاست کی IAS افسر ہے کو تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ ہائی کورٹ نے CIT کی جانب سے انہیں ریاست تلنگانہ کے حوالے کرنے کے حکم پر روک لگائی ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ اکتوبر میں DOPT نے امرپالی کو آندھرا پردیش منتقل کرنے کا حکم جاری کیا تھا اور انہوں نے اس حکم کو CIT میں چیلنج کیا تھا۔ CIT نے انہیں تلنگانہ کے لیے الاٹ کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ DOPT نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں CIT آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے عرضی دائر کی۔ ہائی کورٹ نے آج اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے حکم سنایا اور اس معاملے کی سماعت آئندہ 6 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ کیٹ کے احکامات اس وقت تک نافذ العمل نہیں ہوں گے اور معطلی جاری رہے گی۔ ہائی کورٹ نے IAS امرپالی کے وکیل کو بھی جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2025 کا آغاز۔ جاپان سے تعلق رکھنے والے ایکس مین نامی روبوٹ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ تلنگانہ حکومت کے زیر اہتمام بھارت فیوچر سٹی میں تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ منعقد کی جا رہی ہے۔ گلوبل سمٹ کا آج سے آغاز ہوا ہے۔ جاپان سے تعلق رکھنے والے ایکس مین نامی روبوٹ نے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے مقام داخلے پر مہمانوں کا استقبال کیا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ اس سمٹ میں مختلف اقسام کی سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن کے دستاویز کی نقاب کشائی بھی ہوگی، جو ریاست کے طویل مدتی ترقیاتی منصوبوں کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ اس تقریب میں عالمی سرمایہ کاروں، سفارتکاروں، صنعتی رہنماؤں کے علاوہ کئی مشہور شخصیتیں بھی شرکت کریں گی۔ سمٹ کا مقصد تلنگانہ کو عالمی سرمایہ کاری کے مقام کے طور پر مستحکم کرنا ہے اور مختلف شعبوں میں ریاست کی ترقی کو اجاگر کرنا ہے۔ کوکٹ پلی وائی جنکشن پر پارکنگ کو لے کر جاگرتی کارکنان اور بالانگر ٹریفک CI کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے پیر کو کوکٹ پلی وائی جنکشن پر ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر جاگرتی کارکنان کی بالانگر ٹریفک CI کے ساتھ پارکنگ کو لے کر جھڑپ ہوئی۔ کارکنان نے CI پر ان کے لیے غلیظ زبان استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے حملہ کر دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے کوکٹ پلی میں کچھ دیر تک کشیدگی رہی۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں محکمہ صحت کے اسٹال کا افتتاح انجام دیا۔ بھارت فیوچر سٹی میں تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2025 کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی ہے۔ اس دوران وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے محکمہ صحت کے اسٹال کا افتتاح انجام دیا اور اسٹال پر دکھائے جانے والے محکمہ صحت کے مختلف فلاحی اقدامات کا مشاہدہ کیا۔ BRS رہنما ہریش راو نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیر وسیدی پیٹ رکن اسمبلی ہریش راو نے پیر کو تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کی اور کانگریس کے پچھلے 2 سالہ دور اقتدار پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سالوں میں نہ ہی عوام سے کیا گیا کوئی وعدہ پورا کیا گیا ہے اور نہ ہی تلنگانہ کی ترقی ہوئی ہے۔ ہریش راو نے کہا کہ حکومت نے پرجا بھون کو جلسہ گاہوں، عشائیہ کی تقریب گاہوں اور تفریح گاہوں میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ KCR کی شروع کی گئی تمام اسکیمات کو روک دیا گیا ہے۔ ہریش راو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی MCHRD میں 100 کروڑ روپے خرچ کر کیمپ آفس بنا رہے ہیں۔ انہوں نے 5 کروڑ روپے خرچ کر فٹ بال میچز کے لیے اسٹیڈیم تعمیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو سب سے پہلے عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ نے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی پر نکتہ چینی کی۔ کہا انہیں تلنگانہ کے سیاسی حالات اور ترقی پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مہیش کمار گوڑ سربراہ تلنگانہ پردیش کانگریس و MLC نے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی
تلنگانہ کے سیاسی حالات اور ترقی پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ مہیش کمار گوڑ کا کہنا تھا کہ وہ 2 سال تک مرکزی وزیر رہے لیکن انہوں نے تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے نتائج کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے کہ بی جے پی کو تلنگانہ کے بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اداکار ناگرجنا نے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں شرکت کرنے پر کہا کہ وہ بہت خوش ہیں اور حکومت کا ویژن ڈاکیومنٹ متاثر کن ہے۔ اداکار ناگرجنا نے تلنگانہ گلوبل سمٹ میں شرکت کی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے فلمی صنعت کے ویژن کی حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں شرکت کر کے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے حکومت کا ویژن ڈاکیومنٹ پڑھا ہے اور وہ واقعی متاثر کن ہے۔ ناگرجنا نے بتایا کہ فیوچر سٹی میں فلم ہب قائم کرنے کے لیے بھی بات چیت جاری ہے۔ اناپورنا اسٹوڈیوز کو بھی ఫ్యూచర్ సిటీ में लाया जाएगा। చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఇక్కడ రావటం. తెలంగాణ రైజింగ్ అనే డాక్యుమెంట్ వాళ్ళు తయారు చేసింది, దానికి నేను చదివాను కూడా. చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ది విజన్ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. అండ్ ఇది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ ఒక ఫిల్మ్ హబ్ తయారు చేయాలని ఒక ఐడియా ఉంది. అండ్ దాంతో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీతో కూడా చర్చిస్తున్నారు దాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి. అండ్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ హబ్, జస్ట్ నాట్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ హబ్. అండ్ ఈ మాట వింటుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. అజయ్ దేవగన్ లాంటి వాళ్ళు ఫిల్మ్ ఇక్కడ మరొక ఫిల్మ్ సిటీ నిర్వహించాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. వాటికి సంబంధించి ఏం చెప్తున్నారు? చాలా సంతోషం అండి. అందరూ వస్తే, అందరూ కలిసి పనిచేస్తే చాలా చాలా ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళకున్న కాంటాక్ట్స్తో, మనకున్న కాంటాక్ట్స్తో అందరూ కలిసి చేయొచ్చు ఆల్రెడీ. అండ్ అన్నపూర్ణ కూడా మేము ఆల్రెడీ 50 years నుంచి తెలంగాణలో మేము బీన్ హియర్ ఫర్ 50 years. అది దాన్ని కూడా गुटाला बेगमपेट ईदगाह की वफराजी पर तजावुजात की कोशिश। मुकामी लोगों की इतला पर वक्फ बोर्ड की टीम ने मौके पर पहुंचकर वफराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया। जराए ने बताया कि वफराजी पर कब्जा करने की मुबैना कोशिश के बाद गुटाला बेगमपेट ईदगाह में कशीदगी फैल गई। मुकामी लोगों ने फ़ौरन हरकत में आते हुए हुकाम को आगाह किया। वक्फ बोर्ड की एक टीम फ़ौरन मौके पर पहुंच गई और वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वहां पर कब्जा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि हुकाम ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ किया है। मुकामी लोगों ने वफराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। मंट्रियल ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में 29 साला नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया और उसका साथी शदीद जख्मी हुआ। जराए ने बताया मंट्रियल जिला मरकज में एक फ्लाई ओवर पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार कोंडापर्ती संदीप मौके पर ही जाँ बहक हो गया और उसका साथी, जिसकी शिनाख्त सुमन के तौर पर की गई थी, शदीद जख्मी हो गया। जख्मी सुमन को फौरन इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ किया है। पुलिस का कहना था कि तेज रफ्तारी की वजह से ये हादसा पेश आया। नौ-जोन टास्क फोर्स और कारखाना पुलिस ने एक मकान में डकैती में मुलविस एक नेपाली टोली को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा जेवरात और नकद रकम जब्त कर ली है। तफसीलात के मुताबिक गनराक एनक्लेव में कैप्टन डी के गिरी के मकान में डकैती की वारदात पेश आई थी। नौ-जोन टास्क फोर्स और कारखाना पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नेपाली टोली के 5 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि 8 दीगर मफरूर हैं। डीसीपी टास्क फोर्स गायकवाड़ वैभव रघुनाथ ने मीडिया को बताया कि टोली ने पहले मुतासरा शख्स को कैद किया, उस पर हमला किया और फिर डकैती की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि मुतासरा शख्स ने एक एजेंसी के जरिए 2 घरेलू मुलाजिमीन को मुलाजिमत दी थी और उन्होंने अपनी एक टोली के हमरा 16 नवंबर को मनसूबाबंद साजिश रची और मुतासरा शख्स के मकान में डकैती की वारदात अंजाम दी। हमलावर कीमती अशिया और नकद रकम लेकर फरार हुए और मसरूखा सामान आपस में तकसीम कर लिया। तकरीबन 10 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त की गई है, जिसमें
सोना, चांदी, रोलेक्स घड़ी, नकद रकम, मोबाइल फ़ोन वगैरह शामिल है। डीसीपी ने बताया कि मफरूर अफराद की तलाश की जा रही है, उनमें एक खातून भी शामिल है। टोली को जल्द ही पकड़ा जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कुरमागुड़ा डिवीजन में जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी सीसी रोड और दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं। मंगल को उन्होंने कुरमागुड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए वहां जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। ओल्ड मादरापेट पुलिस स्टेशन के करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए की तखमीना लागत से, बानू नगर में 12 लाख रुपए की तखमीना लागत से और अल जाबरी कॉलोनी में 17 लाख रुपए की तखमीना लागत से सीसी रोड के काम जारी हैं। एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि रोज़ाना वो तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं और ज़ेरे इल्तिवा कामों की तकमीली को यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम से राय भी हासिल की जा रही है। याकुतपुरा हल्के के मकीनों ने एमएलए जाफर हुसैन मिराज से इजहार तशक्कुर किया है और याकुतपुरा हल्के के रुकन असम्बली की हैसियत से 2 साल कामयाबी से मुकम्मिल करने पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी कुरमागुड़े में 3 रोडों का काम शुरू हुआ है। एक ओल्ड पुलिस स्टेशन मादरनापेट की रोड का जो मेन काम चल रहा है, जिसकी लागत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है। उसके अलावा भानू नगर में एक रोड का काम है जिसकी लागत 12.5 लाख रुपए है और अल जाबरी कॉलोनी में एक रोड है जिसकी लागत 17 लाख रुपए है। ऑल टुगेदर अगर अपन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो करीब 1.5 करोड़ रुपए के काम ऑलरेडी चालू हो गए हैं कुरमागुड़ा डिवीजन के अंदर। अल्लाह के फजल करम से नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खास क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार मिल के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, खासतौर से डेवलपमेंट काम के लिए। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब शफाअत साहब मौजूद है। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुरमागुड़ा डिवीजन के तमाम जिम्मेदार सदर मोतमदिन एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के लोग भी मौजूद है। हमारा काम यही है कि जहाँ पर भी कोई काम होता है आवाम से मुलाकात करना, उस काम को तकमील कराना, जो काम पेंडिंग। मैनेजिंग डायरेक्टर अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड करण अडानी ने कहा कि पिछले 3 सालों में अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का इफ्तिताह अमल में आया है। राइजिंग समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने कहा कि पिछले 3 सालों में अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप 2500 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तेलंगाना में 48 मेगावाट का जदीद तरीन AI ग्रीन डेटा सेंटर भी कायम करने जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का इनेकाद करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तारीफ की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने एक ऐसा माहौल फराहम किया है जहां पर सनतें दिलेरी से सोच सकती हैं और पुरएतमाद होकर सरमायाकारी कर सकती हैं। In total, the group has so far invested nearly 10,000 crores in the last 3 years in building state infrastructure and manufacturing facilities and has contributed to employment generation of more than 7,000 people. As I close, सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज 2026 के ट्रेनर्स के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। आज़मीन को सफ़र हज के ताल्लुक से तरबियत देने के लिए ट्रेनर्स का बज़रिए इंटरव्यू इंतखाब किया जाता है। सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज हाउस दफ्तर वाक़ नामपल्ली में मुंतखब उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद असदुल्ला, हज कमेटी के अराकीन मुजीबुद्दीन, मोहम्मद लईख, AEO इरफान शरीफ वो दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मुंतखब नुमाइंदे
सफर हज के दौरान आजमीन को एयरपोर्ट पर क्या करना है, क्या सामान ले जाना है, नुसुक ऐप का इस्तेमाल किस तरह से करना है, सामान का वजन कितना होना चाहिए, हादसे की सूरत में क्या करना चाहिए, इन तमाम की तरबियत फराहम करते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,